Hello students, this is R.K. Patel, PGT Biology, Kendriya Vidyalay, Maligaon. Students, I have released two videos in respect of chapter Molecular Basis of Inheritance. Dear students, today I am going to take a very important topic which will decide about the genetic material. That means here we know whether the protein is genetic material or DNA is the genetic material. Students, before the experiments of Hershey and Chase, it was not clear whether the protein is genetic material or DNA is genetic material. So, here we will study about the transforming principle, Hershey and Chase experiments and properties of genetic material. You know about the transformation, transforming principle. What is transformation? It is some type of changes. So, first we know discovery of DNA as a genetic material. Though principles of inheritance and discovery of chromosome in nucleus were achieved long time back. मतलब ये है कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी न्यूक्लियस में, लेकिन कन्फ्यूजन रहा about which material acted as genetic material. Let us know about the transforming principle. Griffith performed the experiment with the bacteria Streptococcus pneumoniae. You know that this bacteria causes pneumonia. This bacterium has two strands. One is S strands and second is S strands. Let us know the difference between the S strand bacteria and R strand bacteria. Students, S strand bacteria produce smooth colonies on culture plate, while R strand bacteria produce rough colonies on culture plate. Do you know the culture plate? What is the culture plate? It is the glass plate where some nutrients are provided to develop bacteria. Then S strand have a polysaccharide coat, while R strand do not have polysaccharide coat. Where the coat is found? The coat is found outside the cell wall of the bacteria. And virulent S strain is virulent. What do you mean by virulent? That means it causes pneumonia. And R strains does not cause pneumonia. Can you tell why the S strain cause pneumonia and R strains does not cause pneumonia? Here you can see that you have read that S strain have a polysaccharide coat and R strain do not have polysaccharide coat. Since R strain do not have polysaccharide coat, so it cannot cause pneumonia. Let us know about the Griffith experiment. You have studied about two type of strain,
of the pneumococcus. When S strain was injected in a mouse, live mouse, then it has been found that the mouse dies. Why the mouse died? Because S strain causes pneumonia in the mouse and it dies. And when R strain pneumococcus bacteria was injected into the mouse was live. Why the mouse was live? Because the R strain does not cause pneumonia in the mouse. Then if the S strain was heat killed, S strain bacteria were heat killed, and then it was injected into the mouse, then mouse was live. Again you can say that when the S strain were heat killed, then they don't cause pneumonia in the mouse. Then this heat killed S strain, that is virulent strain bacteria, and living R strain avirulent bacteria were mixed and injected into a mouse. Then the mouse was died. The question arises, why the mouse was died? When heat killed S strain injected separately, the mouse was live, and when the R strain, living R strain bacteria were injected separately, the mouse was live. But when both were mixed and injected in the mouse, then mouse was died. That means there must have been some changes into the strain of bacteria that causes the pneumonia, and the mouse was died. Let us know why. What happened? Live R strain in the presence of heat killed S strain produce virulence. That means this heat killed S strain bacteria produce virulence because somehow R strain bacteria is transformed by heat killed S bacteria. R strain bacteria was transformed by which bacteria? This was transformed by the heat killed S bacteria, S strain bacteria. Hence it was concluded that there must be transfer of genetic material. That means some genetic material have gone from S strain to R strain, and then R strain changes into virulent. That means pathogenic. The question arises, which material have gone into the R strain? So here we know about the biochemical nature of transforming material. This was confirmed by Avery, MacLeod and McCarthy were to determine the biochemical nature of genetic material responsible for transformation. They also repeated the experiment with some changes. They take heat killed S strain and live R strain, and they add some enzymes such as RNase and proteases. What is the function of RNase? RNase digest RNA and protein. RNase digest RNA and proteases digest protein. You can understand here that here the total RNA and total protein will be digested by these enzymes. Then transformation
occurs and mouse dies. That means the protein and RNA is not transferred, does not work as genetic material, does not work as transforming material, but again heat kill strain and live strain. Then here the DNA enzyme aided. What is the function of DNA? DNA digest DNA. अब यहाँ DNA नहीं रह गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। पहले वाले केस में DNA था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरे वाले केस में DNA डाइजेस्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे आपको क्या पता चलता है कि DNA ही है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी DNA ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हर्शे एंड चेस ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर्शे एंड चेस वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेज। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या किया? बैक्टीरियोफेज जब वायरस को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के कल्चर में डाला और बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस है बैक्टीरियम को जो है इन्फेक्ट किया। द वायरल जेनेटिक मटेरियल गेट्स अटैच्ड विद द बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल से अटैच्ड हो गया और वो कैसा ट्रीट करने लगा? वो जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट एंड एज इट्स ओन टू सिंथेसाइज मोर वायरल प्रोटीन्स, और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वहाँ अपने मटेरियल की तरह काम करने लगा। तो क्या किया? हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज अ प्रोटीन और DNA दैट इंटर्ड द बैक्टीरियम फ्रॉम वायरस। यानी बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस है, बैक्टीरिया, इसमें से ये अब उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि प्रोटीन गया कि DNA गया। दे लेबल्ड सम phages with radioactive sulfur and other with radioactive phosphorus। यानी बैक्टीरियोफेज लिया, उसको लेबल्ड किया, कुछ को तो रेडियो एक्टिव सल्फर से और कुछ को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेबल्ड किया। अब जो रेडियो एक्टिव फेजेस थे उनको यूज किया गया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराने के लिए। और कौन से बैक्टीरिया को? इश्चेरेचिया कोलाई, ई कोलाई को इन्फेक्ट कराने के लिए किया गया। ई कोलाई वाज देन ब्लेंडेड। अब क्या किया? जो वायरसेस यानी बैक्टीरियोफेज का जो मटेरियल था, जो भी गया था, अब वो बैक्टीरिया में आ गया था, उसको ब्लेंडेड किया गया और ब्लेंडेड के बाद जो है सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज किस लिए किया गया? कि जो उसमें वायरल पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए और जो बैक्टीरिया के हैं वो सेपरेट अलग रह जाए। इट वाज ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया विद रेडियो एक्टिव DNA वेयर रेडियो एक्टिव। अब देखिए, जो बैक्टीरिया थे विद रेडियो एक्टिव DNA वेयर रेडियो एक्टिव, ये कहाँ से आया था रेडियो एक्टिव DNA? हमने तो फेजेज को किया था तो वहाँ से आया था। फाइल दोज विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन लास्ट देयर एक्टिविटी। इसका मतलब DNA ही जो है वायरसेस में से DNA वहाँ गया और वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगा। दिस शोड दैट इट इज़ द DNA दैट इंटर्स द बैक्टीरियम फ्रॉम वायरसेस। बैक्टीरियोफेज से जो है प्रोटीन नहीं गया था बल्कि DNA गया था, और इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ आप एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं। ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है और ये क्या है? इश्चेरेचिया कोलाई बैक्टीरियम है। ये बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरिया है इश्चेरेचिया कोलाई। अब यहाँ देखें इसमें क्या किया गया है। देखिए, S35 रेडियो एक्टिव लेबल किया गया और यहाँ पे P32 DNA है। जानते हैं कि DNA कैसे बनता है?
उसमें आप लोगों ने देखा कि पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फास्फेट ग्रुप होता है, लेकिन वहाँ देखिए सल्फर नहीं था और प्रोटीन में सल्फर होता है। अब यहाँ पे जब आया गया तो देखा गया कि यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इसका मतलब जो प्रोटीन था सेल के अंदर नहीं गया और जो सुपरनेटेंट था यानी जो वायरस को ऊपर सेपरेट किया वो था रेडियो एक्टिव। जबकि यहाँ पे देखिए लास्ट में बैक्टीरिया में क्या पाया गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया जो कि डीएनए में था और नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपर, जो वायरस का जो सुपरनेटेंट लिया उसमें रेडियो एक्टिव नहीं था। इसका मतलब जो वायरस का डीएनए था वो बैक्टीरिया में गया। इसको आप लोग 3 फेजेज में करेंगे एक्सपेरिमेंट को, 3 पॉइंट्स यहाँ देंगे। देखिए पहला इन्फेक्शन कराया गया, किसका इन्फेक्शन कराया गया, बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कराया गया। इसके बाद जब उसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया तो उसका ब्लेंडिंग कराया गया। ब्लेंडिंग मतलब उसको एक तरीके से पीसेस में क्रश किया गया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज करने में जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, वो हुई हुई मटेरियल जो है नीचे डिपॉजिट हो जाता है और जो लाइट मटेरियल होता है वो फ्लोट करने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें कि 3 पार्ट में ये हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल प्रूफ हो गया कि जो डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ये भी सेल में पाता, ये भी डुप्लीकेट करता, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ। तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी के साथ हम तुरंत जान लेते हैं कि आखिर जेनेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मीन्स इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रेप्लिका, इसकी कापी बनाने में होना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल है उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है, अगर रेप्लिकेट नहीं होगा, कापी नहीं होगा तो किस तरीके से उसमें जाएगा। हाँ, और जो सेम अमाउंट जाता है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो उसका स्ट्रेन बाद चेंज होता रहेगा। और केमिकली डीनेचर्ड अगर हो जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन किस तरीके से करेगा। थर्ड पॉइंट है इट शुड हैव स्कोप फॉर चेंजेस दैट आर एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, थोड़ा से इसमें चेंजेस होना चाहिए जो कि इवोल्यूशन जानते हैं ये जो सडन और माइन्यूट चेंजेस होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास होते होते वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जो वेरिएशंस आता है। तो ये इसमें होना चाहिए सम जो है स्कोप होना चाहिए चेंजेस के। इट शुड फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, आपने मेंडल्स के रूल्स को पढ़ा है। जेनेटिक मटेरियल को भी जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को जो है ये फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो ये तो हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। थैंक यू।